morning, students. Today we will learn something about health in human life. What is health? Well, health in humans, the extent of an individual's continuing physical, emotional, mental, and social ability to cope with his or her environment. यानी हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि वो बीमारी से दूर है, बट फिज़िकल है, इमोशनल है, मेंटल है, सोशल, ये सब की सब ये इसके सही होने चाहिए, साउंड होने चाहिए. फिजिकल फिटनेस is not sole basis of being healthy. Being healthy means being mentally and emotionally fit. सिर्फ एक फिज़िकल फिटनेस ही नहीं पूरा होता है, हमें मेंटली और इमोशनली भी फिट रहना चाहिए. बीइंग हेल्दी शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल लाइफस्टाइल. लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल कैन हेल्प प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज़ एंड लॉन्ग टर्म इलनेसेस. तो अगर हमारी लाइफस्टाइल सही हो तो हम लोग क्रोनिक डिजीजेस और लॉन्ग टर्म इलनेसेस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. ह्यूमन हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इकोनॉमी. Most important and immediate consequences of environmental degradation in the world take the form to damage to human health. तो इसमें क्या है कि हमें ह्यूमन हेल्थ जितना सही तरह से हम रख सकेंगे उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, इकोनॉमी भी आगे. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ? इसमें आपका सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, फिज़िकल एनवायरनमेंट है, पर्सनल्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं. There are further problems in settling upon a definition of human health. A person may be physically strong, resistant to infection, and able to cope with physical hardship and other features of his or her physical environment and still be considered unhealthy if his or her mental state as measured by behavior is deemed unsound. यानी अगर वो mentally healthy नहीं है तो अगर physically healthy भी है तो भी उसको हेल्दी नहीं माना जा सकता है. मेंटल हेल्थ कैन itself be defined variously. Some say that a person is mentally healthy if he or she is able to function reasonably well and is emotionally and behaviorally stable. Others define it as absence of mental disorder. तो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो फिज़िकल एक्सरसाइज है, योगा है, और भी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है. हैव अ बैलेंस डाइट, अच्छा सा न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए. स्मोक नहीं करने चाहिए. स्टॉप हैविंग फास्ट फूड्स या अवॉइड इट. प्रिवेंट अल्कोहल. डू नॉट हैव ड्रग्स. हैव एडिक्वेट स्लीप. सोशलाइज. आप देखते हैं फिज़िकल फिटनेस, इस फिज़िकल फिटनेस है तो आप हेल्दी भी रहेंगे. It is a state of health and well-being. This can be achieved through proper exercise, nutrition and rest. प्रॉपर डाइट होना ज़रूरी है. एक बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स आपके और भी मिल्क है, होल ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें. You should have a balanced diet. Your diet should include fruits, vegetables, whole grains, milk products, pulses, nuts, cereals. साथ साथ में हमें अच्छा large amount of water भी drink करनी चाहिए. We should have lots and lots of water. Have a proper breakfast. Avoid fast foods. Drinking water से क्या होगा? Aids in flushing bacteria from your bladder, prevents constipation, stabilizes heartbeat, helps carrying nutrients and oxygen to the cells. We should at least have 3 liters of water in a day. अब स्मोकिंग की बात आती है. मना किया है कि स्मोक क्यों नहीं करनी चाहिए. We should not smoke because it will affect our head. It may cause blindness. It will affect our lungs. It will affect our digestion.
many of our organs will start failing, so it is better to stop smoking. इथेनॉल, अगर हम इथेनॉल यानी अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा? ये दिमाग पर बुरा असर करता है, लिवर पे, हार्ट बीट पे, ब्लड प्रेशर है, ये सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं. Excessive alcohol can lead to development of chronic disease, serious problems including high blood pressure, heart disease, stroke, liver disease and digestive problems. ड्रग्स हमें लेने नहीं चाहिए. ड्रग्स तो किसी वजह से दिए जाते हैं, बट अगर उसका कुछ ज़्यादा उसका सेवन किया जाए तो उसका नुकसान भी होता है. ड्रग्स किस तरह से असर करते हैं? ड्रग्स है क्या? ड्रग्स आर केमिकल्स दैट अफेक्ट द बॉडी एंड द ब्रेन. इट कॉजेज पैरानोया, एग्रेसिवनेस, हेल्यूसिनेशंस, इम्पेयर्ड जजमेंट, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. यानी हम लोग के अंदर गुस्सा ज़्यादा आने लगता है जो लेता है, उसको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो चीज़ें नहीं होती है, उसके जजमेंट लेने में उसको प्रॉब्लम होती है और अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है. We should socialize with each other, and we can socialize. When we socialize, we are accepted by society and we feel happy and we become healthy. So these are all the important points that we should think of to be healthy, to be physically fit, to have proper exercise, have a proper diet, have adequate rest. नींद पूरी लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी हों. तो एक हेल्दी बॉडी के लिए ये सब ज़रूरी होता है. थैंक यू.